السلام علیکم. اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں. شکریہ. مایا آنکھیں کھولو، دیکھو میں ہوں مریم. وہ نرمی سے اس کا گال تھپکتے ہوئے 4 سالہ بچی کو اٹھا رہی تھی. اس کا بخار شدت اختیار کر گیا، اس لیے اب وہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہی تھی. اس نے گھڑی کی جانب دیکھا. رات کا 1 کا وقت تھا. سارے گھر والے سو چکے ہوں گے. وہ سوچتی ہوئی اٹھی اور غازان خانزادہ کے کمرے کی جانب چلی آئی. تذبذب کی کیفیت میں یہی سوچتی رہی، اندر جانا مناسب ہے یا نہیں. دروازہ بجانے پر جواب نہیں آیا تھا. اس نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا. وہ نیم اندھیرے میں سامنے بیڈ پر پڑا سو رہا تھا. مریم ڈری ہوئی آگے آئی اور اسے آواز دینے لگی. سر. وہ آواز دیتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی. اچانک اس کا پیر کارپیٹ میں اٹکا اور وہ قدم کو مستحکم نہ رکھ سکی. سیدھا چیختے ہوئے غازان خانزادہ کے اوپر جا گری. وہ ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی. اس کے بال غازان کی شرٹ میں الجھ گئے. چیخ کی آواز کافی بلند تھی. دروازہ دوبارہ کھلا. بابا سائی نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کمرے کے اندر کا منظر دیکھا. وہ اس پر جھکی ہوئی تھی جبکہ غازان ابھی تک نیند سے صحیح سے بیدار نہیں ہوا تھا. پیچھے سے دیکھنے والے پر بہت غلط تاثر جا رہا تھا. کیا کر رہی ہو؟ وہ ہلکی آواز میں غرایا. مریم بال نکال کر پیچھے ہوئی. بابا سائی نے کمرے کا کھلا گیٹ بجا کر ان دونوں کو متوجہ کیا. یہی سب راتوں کو کرنا ہے، ہمیں بتا دیتے، جائز طریقے سے اجازت دے دیتے. ان کا کاٹدار لہجہ سن کر غازان حیرت سے بنا پلکے جھپکائے بابا سائی کو دیکھنے لگا. بابا سائی میں نے وہ ناسمجھی سے بابا سائی کو دیکھتے پوچھ رہا تھا. مریم شرمندہ سی کھڑی تھی. کل بات ہوگی. وہ لب بھینج کر مڑ گئے تھے. ان کے جاتے ہی غازان مریم کی جانب پلٹا. مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا. مریم کی آواز کانپ رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا. غازان خانزادہ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا. اس نے مریم کا بازو سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑا. جاہل لڑکی، تمہاری وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا. تم نے میری عزت خاک میں ملا دی. وہ اسے خون خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولتا جھٹکے سے دور کر گیا. مریم سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیسے سمجھائے. تو پلیز میری بات تو سنیں، میں صرف آپ کو جگانے آئی تھی. مایا کو تیز بخار ہو گیا ہے. غازان کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے. اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ لمحہ آ رہا تھا جب دروازہ کھلا تھا اور بابا سائی انہیں ایک ساتھ دیکھ رہے تھے. تم میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی، اور وہ بھی آدھی رات کو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا. وہ بتا چکی تھی لیکن غازان کا دھیان ہی کب تھا. وہ تو غصے سے پاگل ہو رہا تھا. میں صرف دروازے پر دستک دینے والی تھی، قسم سے، لیکن میرا پیر کارپیٹ میں اٹکا اور میں پھسل کر آپ کے اوپر. مریم کی آواز گلے میں دب گئی. اسی لمحے غازان نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے لیکن نظروں سے اس کی تذلیل جاری رکھی. اسے جیسے مریم کے ہر لفظ میں سازش نظر آ رہی تھی. وہ اس کے ساتھ مایا اور اس کے مشترکہ کمرے میں آیا. وہ واقعی بخار میں تپ رہی تھی. غازان ایمرجنسی میں اسے لے کر اسپتال گیا. صبح 5 بجے واپس آیا. مریم اس کی منتظر تھی. وہ غازان کی گود میں سو رہی تھی. اس نے مایا کے کمرے میں اسے لٹا دیا اور مریم پر سخت گھوری ڈال کر باہر نکل گیا. صبح جب تک وہ اٹھا تو گھر میں بات پھیل چکی تھی. غازان اور مریم کا افیئر چل رہا ہے. دونوں ایک دوسرے کے کمروں میں راتوں کو جاتے ہیں. یہ افواہ ان کی نوکرانی نے پھیلائی تھی. اس نے مریم کو غازان کے کمرے میں جاتے دیکھ لیا تھا اور بابا سائی کے پیچھے کھڑی چھپ کر سارا منظر بھی دیکھا تھا. چند تصاویر باقی نوکروں کو دکھائیں اور پھر سب طرف مشہور ہونے لگا. غازان خانزادہ کو دوسری شادی کی تڑپ ہے، بس منہ سے انکار کرتا ہے. بابا سائی تک ساری بات پہنچ چکی تھی اور کل کا منظر دیکھنے کے بعد ان کی ہر دلیل بیکار ہی تھی. اسی دن شام کو بابا سائی نے سب بزرگوں کو جمع کیا اور ایک ہی حکم سنایا. نکاح فوراً ہوگا
خاندان کی عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ غازان خانزادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے نکاح سے انکار کرنا چاہا، لیکن بابا سائی نے کہہ دیا وہ اس گھر سے چلا جائے، مایا یہیں رہے گی۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ مایا کے بنا تو اس کا دن نہیں کٹتا تھا۔ مریم کی آنکھیں بھی پھیل گئیں۔ وہ بے قصور تھی، اس کا ضمیر صاف تھا، لیکن قسمت نے اسے ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اس کے پاس نہ تو کوئی دلیل تھی اور نہ بچاؤ۔ غازان خانزادہ بھی ہاں کہہ چکا تھا۔ اب اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نکاح کے وقت قاضی کے سامنے غازان نے سرد لہجے میں قبول ہے کہا، جیسے کوئی قرض چکا رہا ہو۔ نکاح کے بعد سب مبارکباد دے رہے تھے، لیکن ان دونوں کے چہروں پر خوشی کی ایک رمق بھی نہ تھی۔ غازان نے ایک بار بھی مریم کی طرف نہیں دیکھا، وہ بس چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مریم کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ کل بھی غازان خانزادہ سے اتنا سب کچھ سن چکی تھی کہ اب مزید سننے کی روادار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پچھلی رات جس کمرے میں آئی تھی، اسی کمرے میں مریم کا پہلا دن کسی دلہن جیسا نہیں تھا۔ اس کے وجود میں خوشی کے بجائے ایک بوجھ سا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے صرف جد و جہد کی تھی۔ ماں باپ کا سایہ نہیں تھا، تعلیم ادھوری رہی، اور اب جب اس نے ایک بچے کی کیئر ٹیکر کے طور پر زندگی کو کچھ مقصد دیا تو اس کی قسمت نے ایک نیا کھیل کھیل دیا۔ مجھے تم سے کوئی امید نہیں، اس رشتے کو رشتہ مت سمجھنا، یہ بس میرے بڑوں کی ضد ہے اور تم اس ضد کا نتیجہ۔ غازان نے دروازے سے پلٹتے وقت کہا اور بغیر کوئی جواب سنے کمرہ چھوڑ دیا۔ مریم چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ آج اس کا دل، روح اور خواب سب بکھر گئے تھے۔ مایا کمرے میں آئی تو وہ بے سدھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم، اس نے مریم کو پکارا تو وہ ہوش میں آئی۔ جی میری جان، وہ آنسو صاف کر کے مسکرائی تھی۔ میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ اس کے ہاتھ میں اس کی ڈال تھی۔ مریم نے ہاتھ بڑھا کر اسے بیڈ کے اوپر چڑھایا۔ وہ مزے سے اس کو اپنے بابا کے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ اب آپ مایا کے کمرے میں نہیں جائیں گی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور غازان لب پھینچے اندر آیا۔ تمہاری وجہ سے باہر تک نہیں جا سکا، اپنی بیوی کے ساتھ یہ منحوس رات گزاروں؟ وہ مایا کو دیکھے بنا مریم پر غصہ کر رہا تھا۔ مایا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ بابا، اب مریم پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ افسوس سے اپنے بابا کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ بابا کا دماغ خراب ہے، مریم نے آہستہ سے کہا، جیسے مایا نے سنا اور ہنس پڑی۔ مایا، اپنی مریم کو یہاں سے لے جاؤ پلیز۔ وہ غصے میں تھا اور مایا کے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ مایا اور مریم مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں وہاں سے نکل آئی تھی۔ صبح غازان خانزادہ کی ماں نے مایا کے روم میں مریم کو پایا تو حیران ہو گئی۔ انہیں لگا تھا ان کی ڈانٹ سن کر غازان مریم کے ساتھ رہا ہوگا، لیکن اس نے مریم کو ہی کمرے سے نکال دیا ہوگا، یہ انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ وہ اس کی اکڑ پر صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ پہلے اس کے ساتھ عشق چلایا، اب سب کے سامنے معاملہ آنے پر اس نے راستہ ہی بدل لیا۔ وہ مایا کے روم میں آئی۔ مریم اسے تیار کر رہی تھی۔ کیسی ہو مایا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں دادو، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی اب طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے مریم سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم غازان کے کمرے سے کیوں آئی؟ انہوں نے سانسوں والے لہجے میں پوچھا۔ مریم ڈرنے لگی کہ کیا جواب دے۔ مریم خود نہیں آئی، بابا نے کہا دونوں کمرے سے جاؤ۔ وہ بول کر انہیں دیکھنے لگی جن کے چہرے پر سختی در آئی تھی۔ اس غازان کو میں دیکھتی ہوں، چاہتا کیا ہے یہ لڑکا؟ وہ غصے سے باہر نکل گئی۔ مایا نے کندھے اچکائے اور مریم کے ہاتھ تھام کر ناشتے کے لیے باہر آ گئی۔ سلام، مایا نے اونچی آواز میں سب کو مشترکہ سلام کیا۔ مریم نے بھی اس کی بات کیا۔ سب نے سلام کا جواب دیا اور مایا سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ مریم اس کے ساتھ کیئر ٹیکر والے انداز سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، بابا سائیں کی آواز سن کر وہ پریشان ہوتی بیٹھ گئی۔ مجھے لگتا ہے اب مایا کا اسکول میں ایڈمیشن ہو جانا چاہیے۔ بابا سائیں کی بات سن کر مایا مسکرائی تھی۔
जी दादा जान, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। जी बिल्कुल, हमारी माया बहुत बड़ी हो गई है। सब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। इस घर में सबसे बड़े गाजान खानजादा के बाबा थे। उनका इकलौता बेटा गाजान था। उनसे छोटे भाई की 2 बेटियां थीं। चचा की फैमिली और वो साथ रहते थे। मरियम 1 साल से माया की केयर टेकर थी, जिसे गाजान नहीं रखा था। वो 1 साल से इसी घर में मुकीम थी। सब उसे फैमिली की तरह ही ट्रीट करते थे। गाजान खानजादा अपनी बीवी से जुदाई के बाद सख्त हो गया था। सिर्फ माया के लिए नरम पड़ जाता था। अलबत्ता उसका दिल सब के लिए न जाने क्यों सख्त हो गया था। गाजान खानजादा नाश्ते की मेज पर देर से आया। मरियम उसे देखकर बौखला सी गई और इसी बौखलाहट में उससे गाजान के ऊपर चाय का कप उलट गया। अंधी हो गया? वो गरम चाय गिरने पर गुस्से में आया और सबके सामने झड़कने लगा। बाबा साईं ने उसका लहजा देखकर टोका, तमीज से बात करो गाजान, वो अब तुम्हारी बीवी है। माया के सामने अगर आइंदा तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने माया के सहमे हुए चेहरे की जानिब देखकर कहा। वो अपने बाबा को खौफजदा नजरों से देख रही थी। गाजान ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे। वो उसका सर थपक रहा था। नजरें मरियम के वजूद पर टिकी हुई थी, जिसकी वजह से वो सहम गई थी। वो माया को इत्मीनान दिलाकर ऑफिस चला गया। उन सबको स्कूल वाली बात बिल्कुल ही भूल गई थी। गाजान, मरियम और माया को अपने रूम में शिफ्ट करो, वरना मैं तुम्हारे बाबा से शिकायत करूंगी। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, वो उसे झड़कते हुए बोली। उसने गुस्से से शूज उतार कर फेंके। क्या मुसीबत आप लोगों ने मेरे सर पर डाल दी है मामा? वो औरत जिसे मैं जानता तक नहीं, उसे मेरे गले के साथ बांध दिया, सिर्फ एक गलत फहमी में। और अब मुझसे चाहते हैं मैं उसे अपने साथ लिए लिए फिरूं, मुस्कुरा कर बात करूं। माय फुट। वो गुस्से से बोला तो उसकी मामा ने उसे गुस्से से घूरा। माँ के सामने ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? वो माँ वाले सख्त लहजे में पूछ रही थी। भेज दें उन दोनों को, आप उससे पहले इस कमरे से नहीं जाएंगी। वो समझकर गर्दन हिलाते हुए बोला। वो मुस्कुराकर बाहर निकल गई और जब वापस आई तो माया और मरियम साथ थी। मरियम के हाथ में स्टोरी बुक थी। मरियम को पैसे वगैरह दे देना बीवी की हैसियत से, उन्होंने जाते हुए बिल्कुल आहिस्ता आवाज से कहा। गाजान ने मरियम को घूरा। बीवी? वो सोच कर रह गया। किंग साइज बेड पर एक तरफ गाजान था, बीच में माया और दूसरी तरफ मरियम। माया स्टोरी सुनते सुनते सो चुकी थी। गाजान ने मरियम की जानिब करवट ली। मुझे लगता है ये शादी तुम्हारा प्लान था। वो उसकी जानिब मशकूक नजरों से देखते हुए पूछने लगा। मरियम ने उसे घूरने की नाकाम कोशिश की कि अब ये इल्जाम किस लिए? आपको जो समझना है समझे। वो इससे ज्यादा कह ही क्या सकती थी? मैं तो बहुत कुछ समझ रहा हूं। वैसे एक बात बताओ, आगे का क्या प्लान है? मेरी कुर्बत हासिल करना? वो उसकी जानिब देखते हुए सवालिया अबरू उठाए पूछने लगा। मरियम के माथे पर अनगिनत बल पड़े। अगर आपको हासिल करना होता तो पहले आपको मोहब्बत के जाल में फंसाती, ताकि मुझे दोनों ही मिल जाए। क्या मैंने ऐसा किया? मैं एक बात कितनी बार बताऊं, वो सब इत्तफाक था। वो जज होती बोली। उसका दिल चाह रहा था गाजान के सर पर कुछ उठा कर दे मारे, ताकि उसकी फजूल गोई बंद हो सके। मुझे यकीन है तुमने ये सब जानबूझकर किया है। वो ये कहकर करवट बदल गया। वाज़ेह था कि अब वो बात नहीं करना चाहता। मरियम ने सर झटक कर कंफर्टर सर तक तान लिया। रात कब गुजरी और सुबह कब हुई मालूम ही ना हुआ। गाजान जब उठा तो माया को करीब देखकर लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो उसके माथे पर बोसा देकर अंगड़ाई लेने लगा। उसकी निगाह मरियम पर पड़ी। कंफर्टर नीचे गिरा था और वो खुद बेढंगे तरीके से सोई हुई थी। गाजान ने सांस भरकर उसके वजूद पर से नजरें फेरी, लेकिन यूं लगा एक लम्हे में ही उसकी नजरें उसके वजूद से टिक सी गई थी। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम जाते हुए दरवाज़ा जोर से बंद करके गया कि मरियम उठ जाए। वो वाकई उठ गई थी। माया को सोते देखकर मुतमईन हुई। वो वापस आया और उसे उठे देखकर सांस भरी।
वो वॉशरूम से वापस आई तो गाजान जा चुका था। मरियम कमरे में ही रही। वो हमेशा माया के उठने के बाद ही जाती थी। वो कुछ देर बाद उठी, उसके साथ बाहर आई। गाजान और बाकी सब नाश्ते के आखिरी मराहिल में थे। सॉरी, आज देर हो गई, माया ने सबसे कहा। सब मुस्कुरा दिए। बाबा स्कूल में एडमिशन लेना है, चलें? वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। उसके बाल हाफ कैचर में थे और वो बहुत प्यारी लग रही थी। स्कूल? वो हैरान हुआ। हाँ बाबा, दादा साई ने कहा है अब मैं बड़ी हो गई हूँ, स्कूल जाना चाहिए। मुझे बहुत कुछ आता है, मरियम ने मुझे सिखाया है। वो ये बोलकर पूरे एतमाद से सबको देख रही थी। वाकई? फिर देर किस बात की, चलते हैं। वो बहुत खुश हुआ था। अब माया स्कूल जाने के काबिल थी। वो मरियम को भी साथ ले गया था। उसके होने से माया को ढारस मिलेगी। वो हर सवाल का जवाब देती गाजान को हैरान कर गई। वो जब बाहर आए तो गाजान ड्राइविंग सीट पर, माया पैसेंजर सीट पर, जबकि मरियम बैक सीट पर बैठी थी। आपको इतना कुछ आता है माया? वो हैरत से पूछ रहा था। मरियम ने सिखाया है। वो मुस्कुराकर पीछे देखने लगी। मरियम ने मुस्कुराकर देखा। गाजान ने कुछ नहीं कहा, ना कोई शुक्रिया और ना कोई तारीफी कलमात। वो सीध में बस माया से बातें करता गाड़ी चलाता रहा। माया अब स्कूल जाने लगी थी। गाजान ही उसे स्कूल छोड़कर आता था। सबने कहा उसे ट्यूशन भी लगा दो, तो मरियम ने मना कर दिया और उसकी जिम्मेदारी खुद ले ली। वो पढ़ने में बहुत तेज थी। कुछ ही दिन में बहुत कुछ याद कर चुकी थी। उसके उस्ताद भी उससे काफ़ी इम्प्रेस थे। वो कमरे में आया तो बेड पर माया किताबें फैलाए बैठी थी, जबकि मरियम उसके कपड़ों में बटन लगा रही थी। बाबा देखें, उसने गाजान को देखकर बुलाया तो वो मुस्कुराकर माया के जानिब आया। वाओ माया, ग्रेट, उसने टेस्ट में फुल नंबर देखकर कहा। माया ने वापस सर झुका दिया। वो अब ट्रेनिंग कर रही थी। माया की तालीमी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। वो जल्द ही काफ़ी आगे होगी। गाजान मरियम से पहली बार नॉर्मल अंदाज से बात कर रहा था। मरियम को हैरत हुई। गाजान ने पैसे टेबल पर रखे। मरियम ने गाजान की जानिब देखा तो वो बिना कुछ कहे चला गया। मरियम ने लंबी सांस ली। शायद ये उसकी पे थी। हमें एक डोनेशन इवेंट में जाना है। कल रात 8 बजे तैयार हो जाना। माया को मामा के पास छोड़ देंगे, उसने माथे पर उंगली फेरते हुए कहा। मरियम ने इस बात में सर हिला दिया। न जाने इसका जाना क्यों ज़रूरी था। वो अकेला भी तो जा सकता था। शायद मियाँ बीवी को लाजमी जाना हो। वो मुसलसल सोच रही थी। रात सोने से पहले गाजान ने उससे कहा था। वो लंबी सांस भर कर रह गई। चंद घंटे भी अब माया के बिना रहना उसके लिए मुमकिन नहीं होता था। वो 1 साल से उसके साथ थी। वो खुद को माया की माँ तस्वुर करने लगी थी, ऐसी माँ जिसकी इस दुनिया में महज औलाद ही होती है। इस 2 माह में उसे शिद्दत से एहसास होता था कि वो सिर्फ एक माँ की ज़िंदगी गुजार रही है और बीवी होने का कोई सिरे से वजूद ही नहीं था। जबकि गाजान खानज़ादा की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी उस पर अपना दिल हार सकता था। अगर वो 10 बेटियों का बाप होता तब भी। उसका बात करने का लहजा और रिजर्व सा मिजाज इसे मुख्तलिफ बनाता था। कोई नहीं कह सकता था ये आदमी अपनी बेटी के लिए ज़मीन पर बैठ जाता है, उसके लिए आंखों में आंसू तक ले आता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ मरियम ने ही तो देखा था। अगले दिन वो माया को गाजान के मामा के हवाले करके 7:30 बजे तैयार होने चली गई। गाजान तो तैयार होकर पहले ही कमरे से बाहर जा चुका था और एक के बाद एक फ़ोन कॉल्स अटेंड कर रहा था। वो चेहरा फेस वॉश से धोकर बाल सुझाए, जूड़ा बनाकर, आंखों में बारीक लकीर काजल की लगाए और लबों पर इतना लाइट लिप ग्लॉस लगाया था कि देखने पर भी महसूस नहीं होता था कि उसने लबों पर कुछ लगाया भी है। वो सादे सफ़ेद रंग की फ्रॉक पर सफ़ेद रंग का ही सर पर अच्छे से दुपट्टा जमाए, एक कंधे पर मैरून रंग की शॉल डाले मुकम्मल तैयार थी। पाँव में स्लीपर्स अड़ाते हुए वो बाहर आई। गाजान खानज़ादा जो कॉल पर बात कर रहा था आहट पर पलटा और उसे बात करना भूल गई। उसे समझ नहीं आया मुकाबिल को जवाब क्या देना है। वो नज़रें मरियम पर गाड़े, कान से थोड़े फासले पर फ़ोन किए खड़ा बिल्कुल गुंग था।
जैसे उसे स्टैचू बना दिया गया हो। क्या मैं ठीक नहीं लग रही? थोड़ा मेकअप करके आऊं? वो उसे यूं ही खुद को देखता पाकर परेशानी से खुद का असर नौ जायजा लेते हुए पूछने लगी। वो उसे बता नहीं सका। उसने जो ख्वाहिश अपनी महबूब बीवी की बारहा की थी, वो ख्वाहिश सामने खड़ी लड़की ने बिना जाने ही पूरी कर दी। उसका दिल किया इसका माथा चूम ले और बताए उसे कि वो बेहद खूबसूरत लग रही है। वो कॉल काट कर उसकी जानिब चलाया। मरियम कंफ्यूज सी, कभी उसे देखती और कभी खुद को। उसे यही लग रहा था वो अच्छी नहीं लग रही। उसे मालूम ही नहीं था कि ऐसे इवेंट्स में कैसी ड्रेसिंग करते हैं। ब्यूटीफुल, वो उसके कंधे पर मुड़ी हुई शॉल ठीक करके बोला तो मरियम ने हैरत से आंखें पूरी खोले उसे देखा। वो इतना करीब था कि उसकी परफ्यूम की खुशबू मरियम के हवास मुअत्तल कर रही थी। तुम, वो कह रहा था जब उसे याद आया कि वो मरियम है जिसने उसे जाल में फंसा के और अब उस पर नया जाल फेंक रही है। वो सब सोचते हुए बेख्तियार पीछे हटा और लंबे डग भरता निकल गया। गाड़ी में बैठे हॉर्न पर हॉर्न देने लगा। वो माया से मिलकर भागती हुई गाड़ी में आकर बैठी। कुछ लम्हे पहले वाली कैफियत में अभी तक मुब्तला थी और गाजान खानजादा की जानिब देखने से भी गुरेज़ां थी। इस आदमी के जरा से भी करीब आने पर वो हवास में नहीं रही थी। कुछ ऐसा ही हाल बराबर बैठे हुए शख्स का भी था। वो अपना दिमाग माऊफ हो जाने पर हैरान था। आखिर वो अपनी बीवी के अलावा किसी को ऐसे कैसे देख सकता है? लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं थी वो भी उसकी बीवी और निकाह में आई लड़की थी, जिसके लिए महसूसात रखना कोई गुनाह की बात नहीं थी। वो जितना झुटलाए कि वो सिर्फ माया की माँ बनकर रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने शौहर की तवज्जो चाहिए थी। वो चाहती थी उसका शौहर उससे अपनी बातें डिस्कस करे, उसे बताए कि वो क्या चाहता है, उससे फरमाइश करे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं हो सका था। वो दोनों बड़े से हॉल में पहुंचे जहां एलीट क्लास के लोगों के कपड़े देखकर मरियम का सर शर्म से झुक गया। किसी के कंधे नजर आ रहे थे, किसी के कपड़े बस घुटनों तक थे। उसने हैरत से लड़कियों को देखता पाकर गाजान खानजादा ने मुस्कुराहट लबों पर रोकी। वो जानता था ऐसी लड़कियों को देखकर इसे कैसा फील हो रहा होगा कि उसने पूरे कपड़े नहीं पहने हैं। अरे गाजान खानजादा की पहली बीवी तो खासी मॉडर्न थी, इसे देखो बिल्कुल गांव टाइप देसी है। किसी लड़की ने इस पर तबसरा किया। वो उससे दूर एक जगह खड़ी हॉल का जायजा ले रही थी, तब उसे अपने कानों में ऐसे अल्फाज सुनाई दिए। वो पहलू बदल कर रह गई। इसीलिए शायद गाजान को वो पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसकी पहली बीवी खासी मॉडर्न थी, लेकिन वो इसके लिए भी खुद को नहीं बदल सकती थी। ये मौत के मुतरादिफ ही था। सर, आपकी वाइफ तो खासी सोमो सलाद की पाबंद लगती हैं। जब वो मरियम के पास पहुंचा, एक लड़की जिसने स्कर्ट पहन रखा था, उसने आकर गाजान खानजादा से तमस्खुर उड़ाते लहजे में कहा, अगर कोई औरत खुद को ढांपने के बाद मुआशरे में इस नाम से पुकारी जाती है तो मिस, आपको हमें शराब, क्लब, अयाशी का पाबंद गर्दानना चाहिए, नहीं? उसने तल्ख लहजे में भरपूर अंदाज से अपनी बीवी का दिफा किया था कि वो लड़की बल खाकर रह गई। उसे यही लगता था गाजान खानजादा अपनी पहली बीवी जैसी ही लड़कियों को पसंद करता है। मरियम का हैरत से मुंह खुला। वो सोचे बैठी थी गाजान खानजादा इस लड़की के साथ मिलकर कह कहा लगाता उसका तमस्खुर उड़ाएगा। कपड़े ये नहीं बता सकते कि आप क्या चीज़ फॉलो करते हैं, उसने मिनमिनाते हुए तरदीद की। आप कैसे मेरी बीवी के सोमो सलाद पर सवाल उठा सकती हैं? फिर आप जिस दीन से ताल्लुक़ रखती हैं उसमें आपको ऐसा लिबास पहनने की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं। मैं भी आपको इसी बुनियाद पर जज कर सकता हूँ। वो बोलते हुए उस लड़की पर ज़रा रहम नहीं खा रहा था। मरियम ने जल्दी से उसका हाथ थामा। वो चौंक कर उसे देखने लगा तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। गाजान खानजादा ने उस लड़की के पास से हट जाना ही बेहतर समझा, वरना कौन किस चीज़ का पाबंद है उसको बताने में देर नहीं लगती। देर हो गई है काफ़ी, वो घड़ी देखते हुए बेचैनी से बोली, हालांकि अभी सिर्फ आधा घंटा ही गुजरा था। नहीं, अभी इवेंट भी स्टार्ट होगा, 3 घंटे लगेंगे। वो समझ सकता था उसे माया की फिक्र थी। 3 घंटे? वो आंखें फाड़े हैरत ज़दा रह गई।
وہ ہنسنا چاہتا تھا لیکن رک گیا، نہ جانے وہ لڑکی کیا سمجھے۔ جلدی گزر جائیں گے۔ لیکن مریم نے ویڈیو کال ملائی اور مایا سے بات کرنے لگی۔ وہ بالکل بھی تنگ نہیں کر رہی تھی، بلکہ مزے سے وہ دادوں کے ہاتھ سے چائے بسکٹ کھا رہی تھی۔ غازان خانزادہ بیٹھا اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، لیکن وہ پوری طرح کال پر متوجہ تھی۔ کال بند کر کے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو پزل ہو گئی۔ وہ مایا ٹھیک ہے، بالکل تنگ نہیں کر رہی، وہ کان کو مسلتے ہوئے بولی۔ وہ ہنکار بھرتے بولا۔ وہ کسی آنٹی سے بات کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے دل کی دنیا واپس سے آباد کر رہی ہے۔ وہ بے چینی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ بے وفا تھا، اپنی پہلی بیوی کی محبت بھول گیا تھا۔ اتنی جلدی کیسے اپنی پسند کی لڑکی کی محبت وہ بھول سکتا تھا؟ وہ الجھ ہی تو گیا تھا۔ وہ اپنا سحر اس پر چلا چکی تھی۔ اس کی الفت نے غازان خانزادہ کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ سادگی سے اندرونی طور پر جسے چاہنے لگی تھی، اسے بھی عادت کروانے والی تھی۔ وہ خوش تھی کہ کم از کم اس نے باہر کی دنیا میں اسے بیوی کہا تھا اور دوسروں سے بھی عزت کروائی تھی۔ وہ مسلسل سوچتے ہوئے واپسی کے سفر پر مسکراتے آئی تھی۔ چینج کیے بنا مایا کے پاس گئی تو وہ سو چکی تھی۔ یہ میرے بنا ہی سو گئی، وہ افسردگی سے بولی تو اس کی دادی ہنس پڑی۔ اب بڑی ہو رہی ہے بیٹے، بہت مشکل سے سوئی ہے، وہ بتاتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آپ آرام کریں، میں مایا کو لے جاتی ہوں اپنے ساتھ۔ وہ مایا کو لیے کمرے میں آ گئی۔ سنیں، وہ فریش ہو کر ٹاول سے بال خشک کر رہا تھا جب مایا کو گود میں لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مریم نے اسے پکارا۔ اس نے پہلی بار یوں مخاطب کیا تھا۔ وہ پوری طرح متوجہ تھا۔ آپ نے جو شاپنگ کے لیے پیسے دیے تھے وہ میں نے آپ کو دینے ہیں، وہ مایا کو بیڈ پر لیٹاتے ہوئے بولی۔ وہ سمجھ گئی تھی غازان نے اسے پیسے دیے ہیں اور وہ پے سے کافی زیادہ تھے۔ کیوں دینے ہیں؟ مایا کی شاپنگ تمہاری ذمہ داری تو نہیں ہے، تم وہ پیسے اپنے اوپر خرچ کرو۔ وہ اچانک غصے میں آ گیا اس لڑکی کی خودداری پر۔ ماں کہتی تھی اسے پیسے دو اور وہ دیتا تو وہ لیتی نہیں تھی، لیکن وہ کچھ بولتی کہ غازان نے سرد نظروں سے گھور کر اسے خاموش کروا دیا۔ وہ بے چینی سے لیٹی ہی تھی کہ مایا اٹھ بیٹھی۔ میری گڑیا کو کیا چاہیے؟ وہ اٹھتے ساتھ ہی مریم کے بالوں سے کھیلنے لگی۔ مام، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ مریم نے نظریں جھکائی، کہیں غازان اسے غلط نہ سمجھے۔ اگر اس کی دادی اسے کہتی تھی کہ مام کہا کرو، مریم نہیں۔ بابا بھی تو ہیں مایا کے پاس، وہ ہلکی آواز میں باتیں کر رہی تھی، کہیں غازان خانزادہ نہ اٹھ جائے، لیکن وہ اکثر اٹھا ہی ہوتا تھا اور ان کی باتیں بھی سنتا تھا۔ بابا میرے ہیں، اس کے بولنے پر مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ غازان خانزادہ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ بالکل، بابا تو پورے کے پورے آپ کے ہیں، وہ مسکرا کر اس کے گال چوم گئی۔ بابا، وہ اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی تھی۔ بابا سو رہے ہیں پرنسس، صبح آفس بھی جانا ہے نا، موم سے بات کر لو، وہ قالین پر لاتے ہوئے اسے پچکار رہی تھی۔ کھلونے نکالتی نیند سے بوجھل آنکھیں لیے اس کے ساتھ کھیلنے لگی، لیکن وہ مسلسل اپنے بابا کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جو اس کے پیچھے سوئے ہوئے تھے۔ چندا، بابا صبح کیسے اٹھیں گے؟ بابا کو آفس جانا ہے نا، موم ہے نا آپ کے پاس، کیا آپ موم سے ناراض ہیں؟ اسے اچانک محسوس ہوا مایا اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ بنا جواب دیے غازان کے سر پر پہنچ گئی، پھر اس کی بیئرڈ کھینچنے لگی، کبھی بال کھینچتی۔ وہ مسکرانے لگا لیکن اٹھا نہیں۔ جب وہ چیخ کر روئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اسے گود میں لیے تھپکنے لگا۔ مریم اس کے پاس آئی۔ مایا نے منہ موڑ لیا اور سختی سے غازان کے کندھے سے چپک گئی۔ یہ حیران کن بات تھی، وہ دونوں حیران تھے، اور پھر وہ ساری رات جاگتی رہی۔ مایا نے مریم کو اگنور ہی کیا اور غازان کے ساتھ لگی رہی۔ مریم سے برداشت نہ ہوا، وہ واش روم میں بند ہو کر جو روئی کہ حد نہیں۔ اسے مایا کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس بات سے ناراض تھی کہ مریم اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بھی سمجھ چکا تھا وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مایا کو سمجھانے کے لیے اس کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ وہ باہر آئی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کو اس پر ترس آیا۔ وہ مایا کو چھوڑے اس کی جانب آیا۔
वो कल सुबह तक भूल जाएगी अपनी नाराज़गी। बच्चों की तरह कौन रोता है? वो नरमी से उसे देखते समझाने लगा। आज से पहले कभी उसने मुझे इस तरह इग्नोर नहीं किया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो दोबारा रोने लगी थी और माया जल्दी से भागकर दोनों के पास आई। बाप को गोद में लेने का इशारा दिया। उसने इसे गोद में उठाया। वो मरियम का गाल चूमने लगी। बस माँ के रोने तक उसकी नाराज़गी थी। मॉम, वो हाथ बढ़ाकर उसकी गोद में आने का बोलने लगी। दादी ने कुछ देर में नाम इस कदर घोल कर पिला दिया था कि उसे मरियम भूल चुका था। नाराज हो? वो पूछ रही थी और माया ने नफ़ी में सर हिलाया। आप ज़रूर बाबा की वजह से लेट हुई होंगी। वो अब ठीक से बात करने लगी थी। गाज़ान ने घूर कर माया और मरियम को देखा, वापस जाकर लेट गया। माया को अब बाप भूल गया था। दूसरे दिन गाज़ान का मूड काफ़ी बेहतर था। अब अगर मरियम से मूड ऑफ नहीं रखता था तो अच्छा भी नहीं रखता था। कुछ चीज़ें बदल गई थीं। दोनों के दिल जिसे ज़बान पर लाने से कतरा रहे थे। माया की मामा की गर्दान पर गाज़ान लब भेंट जाता। उसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी और इन दोनों को बुलाया गया और माया की रिपोर्ट दिखाई गई। वो मुसलसल अच्छे नंबर ले रही थी और मरियम बेइंतहा खुश हुई। कुछ मुकाबलों में उसने पहली पोजीशन ली थी और ये दोनों के लिए फ़ख्र की बात थी। मरियम घर आई। सबको उसने बताया कि माया कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है। गाज़ान भी ऑफिस में मुस्कुराता रहा था। दोपहर में उसने कुछ सोचकर मरियम को मैसेज किया, क्या माया को ट्रीट दें? उसका मैसेज पढ़कर मरियम को यह ख्याल अच्छा लगा। बिल्कुल, हर छोटी सी खुशी मनानी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। वो मुस्कुराते हुए टाइप कर रही थी। माया को सबसे अच्छा क्या लगता है जिसे देखकर वो खुश हो जाए? वो पूछ रहा था। अचानक मरियम का जहन उसकी कल स्कूल से वापसी पर कही गई बात पर अटक गया। मुझे ना बहन या भाई चाहिए, वो खाना खाते हुए बोली। तो मरियम ने हैरत से देखा। मतलब क्यों चाहिए? वो इस नए मुतालबे पर हैरान रह गई थी। मेरी क्लास में सबके बहन भाई हैं और वो बताते हैं हम कैसे खेलते हैं, कैसे करते हैं। मेरे पास कोई नहीं है मामा, मुझे बहन या भाई चाहिए। वो ज़िद्दी लहजे में बोली कि मरियम उसे अभी लाकर दे देगी। मैं कहाँ से लाकर दूँ? वो ज़ब्त से बोलती उसे शर्मिंदगी हो रही थी। बाबा से कहें, वो ला देंगे। उसकी अगली बात सुनकर मरियम बेख्तियार खांसने लगी थी और फिर वो माया की बहन भाई वाली बात से बचने के जतन करती रही। उसे मालूम था जब तक उसका मुतालबा पूरा नहीं होता वो मरियम को याद दिलाती रहेगी और डर था कहीं गाज़ान को ना बोल दे। न जाने वो क्या सोचेगा कि मरियम ने उसे सिखाया है। कहाँ गई? वो मैसेज पर मैसेज कर रहा था। उसे डॉल्स बहुत पसंद है और उसे स्टोरीज बुक भी पसंद है। वो जवाब लिखकर भेजने के बाद सोचने लगी कि अब क्या करे। माया को उसने रात गाज़ान के आने से पहले समझा दिया था कि उसके सामने ये बात ना करे वरना वो गुस्सा होंगे। माया मान गई। वो रात कमरे में आया था। सब कुछ नॉर्मल था। उसने वो सारे तोहफे कमरे में रख दिए थे ताकि सुबह उठकर उसको सरप्राइज दे सके। मरियम माया के साथ सोई हुई थी। वो भी कपड़े चेंज करने के बाद सोने के लिए लेट गया। उसकी नज़रें बार बार भटक भटक कर मरियम की तरफ उठ रही थी। उसने सोचा था कि अपने इस रिश्ते की उसे शुरुआत कर देनी चाहिए। जो भी हुआ उसे भूल जाना चाहिए। अगली सुबह माया स्कूल चली गई थी। उसे सरप्राइज बहुत पसंद आया था। उसने बार बार गाज़ान का शुक्रिया अदा किया था। वो उसे स्कूल छोड़कर वापस घर आ गया। वो घर से एक फ़ाइल ले जाना भूल गया था जिसकी वजह से उसको वापस घर आना पड़ा। वो बेजारी से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया, लेकिन कमरे से आती मरियम की आवाज़ पर वो दरवाजे पर ही ठुठक कर रुक गया। अरे यार, मैं कैसे कहूँ गाज़ान को? अगर उनको पता चला तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। दरवाजे की जानिब उसकी पुश्त थी। गाज़ान ने चौंक कर सोचा वो किस बारे में बात कर रही है कि वो इस पर गुस्सा हो जाएगा। अगर वो उस पर शक कर रहा था तो उसको यकीन हो गया था कि मरियम ने ज़रूर उससे पैसों और रुतबे के लिए शादी की है। अरे वैसे ही गाज़ान को मुझ पर शक है कि मैंने ये शादी किस वजह से की है।
अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर कुछ भी कहूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। उसकी बातों का गाजान यही मतलब ले रहा था कि ज़रूर उसने इसे हासिल करने के लिए माया को मोहरा बनाया है और फिर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई है। वो दरवाजे से ही वापस पलट गया। वो आगे भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन उसका मरियम पर से एतबार बिल्कुल उठ गया। वो थोड़ा बहुत एतबार करने लगा था। दिल की बदलती हालत पर उसने मरियम को कबूल करने तक का सोच लिया था, लेकिन उसकी बात ने इसे झंझोड़ कर रख दिया। माया छोटी बच्ची थी, उससे अटैच हो चुकी थी। वो माया को कैसे समझाता? खुद को तो समझा लेता, लेकिन वो बच्ची उसके जाल में फंस चुकी थी। वो इसी कश्मकश में ऑफिस पहुंचा। उसने सारी मीटिंग्स भी कैंसिल कर दी। दोपहर खाने के वक्त जब वो माया को स्कूल से लेने गया तो वापसी पर वो घर ही रुक गया, वापस ऑफिस नहीं गया था। सबने उसे तबीयत खराबी का पूछा था। मरियम ने भी उससे पूछा तो उसने बहुत रूखे अंदाज से जवाब दिया। मरियम चौंक गई कि अचानक से उसे क्या हो गया। उसने मरियम से कुछ भी पूछने की या जानने की कोशिश नहीं की। उसका दिल दूसरी दफ़ा बुरी तरह टूटा था और तोड़ने वाली 2 औरतें थीं जिन पर वो एतबार करने लगा था। दोपहर खाने के बाद वो माया को रूम में छोड़कर अपने कमरे में आ गया। उसने मना कर दिया था कि कोई भी कमरे में ना आए और ना ही उसे डिस्टर्ब करे। उसकी वजह से मरियम और माया दोनों ही उसके कमरे में नहीं आ रही थी और वो सर पर बाजू रखे मुख्तलिफ सोचों में गुम था। खुद पर गुस्सा हो रहा था कि उसने मरियम को मौका ही क्यों दिया कि उसके दिल के साथ खेल सके। वो माजी की भूल भुलैयों में खोने लगा। उसकी पहली बीवी बहुत मॉडर्न और हसीन थी। दोनों ने एक दूसरे से पसंद की शादी की थी। घर वाले मॉडर्न लड़की लाने के खिलाफ थे, लेकिन गाजान को तूफानी किस्म की मोहब्बत हो चुकी थी। वो अपने फैसले पर डट गया था। सबके इख्तिलाफ के बाद उसने जोया से शादी कर ली। शादी का 1 हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा। वो दोनों घर में टिककर नहीं बैठते थे, कभी कहीं का सफ़र तो कभी कहीं की सैर। घर वाले खुश हो गए। चलो गाजान को उसकी खुशी मिल गई। गाजान बिजनेस ट्रेनिंग के लिए बाहर चला गया 2 हफ्ते के लिए। पीछे जोहा ने मौका मिलते ही अच्छी खासी तबाही मचा दी। वो शाम में तैयार होकर जो निकलती, रात देर तक घर आती और बाबा साईं या मामा के कुछ भी कहने पर उसका जवाब होता कि गाजान ने मुझे हर चीज़ की इजाज़त दी है। वो सब चुप कर जाते कि गाजान की गैरत सो गई है। इन 2 हफ्तों में उन लोगों ने कई बार उसे नशे की हालत में घर आते देखकर गाजान की पसंद पर कई बार लानत भेजी थी, लेकिन गाजान किसी की सुनता ही कब था। 2 हफ्ते से उसका सफ़र 2 माह का हो गया और इस दौरान जोहा ने गाजान से बात तक ना की। वो समझा शायद वो नाराज़ है। वो खुशी खुशी बहुत सारे तहाइफ वापस लेकर आया। अचानक उसकी निगाह मेडिकल सेंटर की जाने पड़ी जहाँ से जोहा निकल रही थी। उसने बिना बाजू का ड्रेस पहना हुआ था। इससे पहले कि वो उतरता सिग्नल खुल गया और उसे चारों नाचार गाड़ी साइड करने के लिए घूम कर आना पड़ा। जब तक जोहा वहाँ से जा चुकी थी, वो अंदर गया और उसने जोहा की रिपोर्ट मांगी। काफ़ी बहस के बाद रिपोर्ट दी, जिसे पढ़कर गाजान की दुनिया हिल गई। जोहा ने अबॉर्शन करवाया था। वो लब भेंच कर घर आया। वो बहुत गुस्से में था। जोहा की हालत ख़राब थी। तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हो रही है? उसने सर पर पहुंचकर उसे देखते पहला सवाल किया। तुम्हारी जुदाई में हो रही है। वो हंसी और उसे गले से लगाना चाहा, लेकिन गाजान ने उसे दूर कर दिया। कहाँ से आ रही हो? वो उससे सख्ती से पूछ रहा था। पहली दफ़ा सख्त लहजे में पूछने पर जोहा का दिल डूबने लगा। मुझे बच्चे नहीं चाहिए, वो रोते हुए बोली। ये हम मिलकर तय करेंगे जोहा। तुम होती कौन हो अकेले ये सब सोचने और फैसला लेने वाली? तुमने मासूम जान को मार डाला। वो नम आंखों से पूछ रहा था। मैं क्या करती? मुझे अपने वजूद पर कोई बोझ नहीं चाहिए। वो चीख रही थी। गाजान का हाथ उठ गया। वो बाहर निकला। सबने उसे अफसोस से देखा। वो शर्मिंदगी से घर से चला गया। कुछ दिन बाद जिंदगी नॉर्मल रास्ते पर आई। उसने साफ कह दिया कि उसे बच्चा चाहिए और जोहा को पैदा करना होगा। गाजान को जिद सी लग गई थी। उसने ज़ोर ज़बरदस्ती कर ली थी, लेकिन जोहा हर मुमकिन कोशिश करती बच्चे को नुकसान पहुंच जाए और जोहा की उसे जान छूट जाए।
काफ़ी बार अबॉर्शन की कोशिश की, लेकिन गाजान पहुंच जाता। वो दोनों लड़ाई झगड़े में ज़िंदगी गुजार रहे थे। तुम कुछ भी कर लो जोहा, मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए। गाजान ने सख्ती से बावर करवाया। मैं उसे मार डालूंगी, तुम देखना। वो गुस्से से बार क्लब जाना बंद होने पर बोली। गाजान ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और वो मज़ीद गुस्सा हुई थी। बड़ी मुश्किल से गाजान ने जोहा को इंतहाई कदम से रोकते हुए 8 माह गुजारे थे। प्री मेच्योर डिलीवरी पर माया बहुत कमज़ोर पैदा हुई थी। जोहा ने उसे देखा तक नहीं था। गाजान ने पागलों की तरह मोहब्बत जताता रहा। जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती, गाजान पास होता और जोहा न जाने कहाँ होती। वो उसे पैदा करने के बाद बिल्कुल आज़ाद हो चुकी थी। बस अपनी रिकवरी तक वो घर में ठहरी, बाद में वो बाहर ही पाई जाती थी। वो अक्सर रात में उसे कहता था कि जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हमारी फैमिली मुकम्मल है, हम मिलकर आगे की प्लानिंग करते हैं। जोहा जवाब ना देती। एक दिन उसने गाजान के मुंह पर तलाक के कागजात फेंक दिए। मुझे तलाक चाहिए, वरना मैं खुला भी ले सकती हूँ, उसने बेमुरव्वती से कहा। यूं लगा जैसे वो कंप्रोमाइज़ कर रही है। हमारी माया, वो नरमी से उसे समझाना चाहता था। माया बहुत छोटी है, तुमने ज़बरदस्ती पैदा करवाई है, अब भुगतो। मैंने तुमसे रुतबे और पैसे के लिए शादी की थी, लेकिन मुझे यही चीज़ डबल होकर मिल रही है। जल्दी तलाक दो, मेरा वेट कर रहा है कोई। उसकी बेहसी पर गाजान का दिल उसी दिन मर गया था। उसने तलाक दी और वो बहुत गुरूर से वहाँ से निकली कि उसने न जाने क्या हासिल कर लिया है। माया को उस घर के एक एक फर्द ने संभाला था। 4 माह की माया माँ के लम्स से नाशना रही थी। वो दिन था, गाजान ने खुद पर से नरमी का खौल उतार फेंका, मोहब्बत का जज्बा औरत से दूर कर लिया, रोबोट बन गया था। बाबा साईं जानते थे उनके दरमियान कुछ नहीं है। गाजान को एक हमदर्द बीवी की ज़रूरत थी और 1 साल में वो मरियम को जान गए थे कि वही उनके बेटे की ज़िंदगी आबाद कर सकती है। वो कमरे से बाहर निकला। माया और मरियम कमरे में बातें कर रही थी। उनकी आवाज़ गेट तक आ रही थी। मामा, आपने बाबा से बात की? वो अपनी वही फरमाइश दोहराने लगी। बेटा, बाबा बहुत गुस्सा होंगे। मैंने अपनी दोस्त से बात की कि कैसे मैं अपनी प्रिंसेस की ये फरमाइश पूरी करूं, तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगी। तुम्हारे बाबा से डर लगता है मुझे। गाजान हैरानी से सुन रहा था। यही बात वो दोपहर में सुन चुका था। आखिर बात क्या थी? वो उसे गलत समझ रहा था। बात शायद कुछ और थी। आप बाबा से कहो, माया को भाई या बहन चाहिए। उसकी बात सुनकर मरियम के गाल सुर्ख हुए, जबकि गाजान साकित और जामिद होया। गोया उसे अपनी समात पर यकीन न आया हो, और फिर उसे समझ आ गया कि मरियम की उन बातों का मतलब क्या था। शुक्र था वो कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले सब जान गया था। मे आई कम इन प्रिंसेस? गाजान ने दरवाजे पर खड़े खड़े पूछा। यस बाबा, वो खुशी से चहकी। बाबा, मामा को आपसे डर लगता है, लेकिन माया को डर नहीं लगता। वो थोड़ी पर हाथ रखते हुए बोली। मामा वैसे ही डरपोक है, मेरी माया बहादुर है। वैसे कौन सी बात कहने में डर रही है मामा? वो शरारत से पूछने लगा। मैंने मामा से बर्थडे गिफ्ट मांगा है, मुझे छोटा सा भाई या बहन चाहिए। मामा कहती हैं बाबा के सामने मत कहना, वरना वो मुझे डांटेंगे। बाबा, आप कहते हैं ना बर्थडे से पहले बता दिया करो कि क्या चाहिए। मैंने मामा को बताया तो वो जब से अपसेट है। वो पटर पटर बोल रही थी, जबकि मरियम कमरे से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। इतनी सुबकी उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। मामा अगर इजाज़त दें तो हम आपको इसी साल नहीं, अगले साल ऐसा तोहफा दे सकते हैं। वो मरियम का सुर्ख तपता चेहरा देखकर मजीद शरारत पर आमादा हो रहा था। उसे आज से पहले ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला था। जोहा कभी नहीं शर्माती थी और वो शर्म से दोरी हो रही थी। मामा ब्लश कर रही हैं, गाजान ने छेड़ा। बस उससे ज़्यादा वो बर्दाश्त ना कर सकी। मरियम गाजान के कमरे में भाग गई। आप बाबा से स्टोरी सुनोगी? वो पूछने लगा तो उसने गर्दन हिला दी। मामा नहीं आएंगी? वो लेटते हुए पूछने लगी। मामा को बाबा देख लेंगे, आप मेरी स्टोरी सुनकर सो जाओ।
मामा बाबा से नाराज हैं, बाबा को मनाना है, वो उसे समझाते हुए बोला। माया काफ़ी देर स्टोरी सुनने के बाद सो गई। वो कंफर्टर उड़ाकर लाइट्स बंद करके बाहर आ गया। अब उसके कदम मरियम की जानिब थे। उसका दिल और मूड बहुत खुशगवार था। मुस्कुराहट ने लबों का रुख कर लिया था। वो कमरे में आया तो मरियम शावर ले रही थी। वो बाहर आई और उसे देखकर बौखला गई और दुपट्टा ढूंढने लगी। मैंने पहले अपनी बीवी को पर्दे में देखने और हया से रहने की ख्वाहिश की थी, और ये सुनकर उसने कहा था, ये दकियानूसी सोच है, मैं आज की लड़की हूँ। वो उसे दुपट्टा उड़ाते बोला, मैं तुम्हें जब जब पर्दे में देखता था मुझे लगता था मैंने गलत लड़की का इंतखाब किया था। असल खुशी इसी लड़की में है, मुझे इंतज़ार करना चाहिए था, कैसे भी तुम मुझ तक आ ही जाती। वो अफसोस करते हुए बोला। तो मरियम ने झटके से सर उठाया। नहीं, फिर मैं माँ से कैसे मिलती और वो मुझे माँ बने बिना कैसे बताती कि ममता क्या होती है। उसकी बात सुनकर गाज़ान को टूट कर प्यार आया। उसने मरियम को गले से लगा लिया। ये सब मरियम ही कह सकती है। वो उसका दुपट्टा उतारते बोला। मरियम हैरान हुई। माया इंतज़ार कर रही है, अगर लेट किया तो अगली से अगली बढ़ते इंतज़ार करवाना पड़ेगा। अगर वो एक पर राज़ी ना हुई तो। उसने थोड़ी पर उंगली रखकर सोचा। मरियम कमरे से भागने लगी। गाज़ान ने पीछे से पकड़ लिया। वो भागने की कोशिश करती और गाज़ान पकड़ने की इस कोशिश में मरियम पर जा गिरा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लम्हात ठहर गए थे। सांसों की आवाज़ दोनों को सुनाई दे रही थी। यहीं से इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी।